सो वो उस टाइम पे आई फेल्ट नम, कंप्लीटली नम कि ओके इट हैज हैपेंड, कि वी ऑल सीइंग दिस मच ऑफ फेलियर, आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड समवेयर कि व्हाट इफ इट डजंट हैपन. सो व्हेन इट केम आई फेल्ट कंप्लीटली नम. तो उसके बाद तो द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज कि आई कॉल्ड माय फादर बिकॉज ही वाज द वन हु हैड वेटेड eagerly alongside me to see my name in the list. तो ये हम्म। पहला रिजल्ट था, ये जो मैंने बताया कि ओके फाइनली सिलेक्शन हो गया है. और वो ट्रैवल कर रहे थे, बॉम्बे जा रहे थे वो ट्रेन में. एंड ही तो क्राइड अ लॉट. माय मदर टोल्ड मी कि अराउंड 2-3 आवर्स के लिए तो ही वाज क्राइंग ओनली. कि ठीक है, बिना कोचिंग अगर 12th और ऐसे कॉलेज तक निकल जाता है, मे बी यूपीएससी भी निकल जाएगा. हम्म। दूसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बना लिया है, तो मेरे को एक वो भी भ्रम तोड़ने का था कि नहीं यार, बिना कोचिंग की भी चीजें पॉसिबल हैं, बिकॉज मेरा तो सैचुरेशन हो गया है. ओके। और अगर जॉब है उसके साथ खुश हूँ मैं. आईएएस नहीं मिलता है, कुछ और मिलता है, स्टिल कुछ मतलब हाँ, हाँ, हाँ. फिर आइडिया। भी आई एम डन कि ठीक है, और लोगों को चांसेस मिल जाने चाहिए. व्हाई वेस्ट अ सीट, व्हाई वेस्ट एन अटेम्प्ट दूसरों पे. Success is often a result of learnings from successive failures. Who knows it better than a scientist and athletes? Today, we are presenting the story of a lady sports person who overcame 4 failures before cracking the code of UPSC Civil Services exam. In her first 3 attempts, Tripti Kalhans couldn't clear the first hurdle, that is prelims. When in her fourth attempt, she stopped at the maze. She decided to take a break for a year. With renewed determination, she came back stronger. In UPSC CSE 2023, Tripti cleared the exam with an AIR 199. Her journey was far from easy, but her sports training taught her to face failures with grace, renewed vigor, and better strategy. Now, after years of hard work, she has achieved her dream. Hello, everyone. This is Pallavi, and you are watching Indian Mastermind. Today, I am with Ms. Carl Hans and will discuss her journey, the challenges she faced, and how she overcame them. So, welcome, Ms. Tripti. So, it's been over 2 months since the results were announced. So, how have you been feeling? Are you relieved now? You are happy? What is it? Relieved, happy, satisfied, everything. Like it's a dream come true moment for me. कि I had waited a long time for this, and now finally it has happened. So living the dream right now. That's what I would say. If you can take me through that day when the results were announced, I think it was announced on 16th of April. Yeah. Yes. So how was it? Like you checked your result or any friend of yours checked it? How did you get to know? What was your reaction? And also whom did you call first to, give this big news? So I was in my library only, and it was obvious that the result was going to come on 16th April. So we were eagerly waiting for the result, like to come. So frustrated हो गए because the result was not coming. So around 1:30, I think the result came, and I asked one of my friends in library to see the result because मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं था. So, and he checked my name. There are two options: either you check through roll number or through your name. So I checked my roll number, the PDF mein. Hmm. And once the name gets highlighted, and my friend jumped, and he was like, you have finally made it to the list. So वो उस time पे I felt numb, completely numb कि okay it has happened, कि we all seeing this much of failure. I was mentally prepared somewhere कि what if it doesn't happen. So when it came, I felt completely numb. तो उसके बाद तो the first thing I did was कि I called my father because he was the one who had waited eagerly alongside me to see my name in the list. तो ये Hmm. पहला रिजल्ट था, ये जो मैंने बताया कि ओके फाइनली सिलेक्शन हो गया है. और वो ट्रैवल कर रहे थे, बॉम्बे जा रहे थे वो ट्रेन में. एंड ही तो क्राइड अ लॉट. माय मदर टोल्ड मी कि अराउंड 2-3 आवर्स के लिए तो ही वाज क्राइंग ओनली कि ठीक है, ओके हो गया. एंड मैं तो नम पड़ गई. मुझे बहुत इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू सेटल इन दैट थिंग कि यस द रिजल्ट हैज कम इन एंड यू हैव बीन सिलेक्टेड फाइनली. नो मोर prelims and no more mains and no more, you are I out of the cycle actually. I saw one of your reel in which you were saying कि इस बार खुशी है that I don't have to give the prelims in this year. So हाँ, that's the correct, biggest correct. happiness, I guess. Yes. Yes, I'll talk about your journey in UPSC and also okay, how did you get through all the failures and all. But before that, you come from Gonda, right? And you then came to Delhi for your graduation. So thoda sa, if you can tell me about your childhood, how was it?
So was it easy studying, completing your education in Gonda and then moving to Delhi? Because Delhi, obviously, I also come from Bihar. और मेरा भी कुछ इसी तरह का ट्रांजिशन रहा. हाँ, So it gets difficult in the year. अभी का नहीं पता, but obviously हाँ, back after, मतलब 3 7 8 साल पहले, 10 साल पहले चीजें थोड़ी डिफरेंट थी. ऑब्वियसली इतनी लड़कियां उस समय भी बाहर नहीं आ रही थी. सो हाँ. हाउ वाज योर जर्नी फ्रॉम, पहले तो गोंडा में एंड देन फ्रॉम गोंडा टू दिल्ली? तो गोंडा डेफिनेटली इज अ स्मॉल टाउन, लेकिन वो लकीली आई गॉट इनटू द बेस्ट स्कूल ऑफ गोंडा एट दैट टाइम. तो वहाँ का स्कूलिंग वाज वेरी गुड, बहुत डिसिप्लिन्ड स्कूल है हमारा. तो स्कूल में तो आई वाज थोड़ा आई रिलेट वेरी मच विद फुंगशुक वांगडू कैरेक्टर ऑफ थ्री इडियट्स. मेरा वैसा ही है कि ठीक है, पढ़ाई करनी है, मस्ती करना है, वैसा चलता था स्कूल में. तो टीचर्स फ्रेंड्स सब बहुत अच्छे, लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के. मैंने सुना है लोगों से बोलते हैं कि गोंडा के लोग अच्छे नहीं होते और ओके. बहुत वैसे रूड होते हैं, बट दैट इज नॉट द थिंग. राइट. तो फिर स्कूलिंग में तो बहुत मजा आया, इजिली स्कूल हो गया था. थोड़ा मतलब फाइनेंशियली कहीं कहीं डिफिकल्टीज आई होंगी, बट स्कूलिंग अच्छे से कर लिया. आई टॉप माई ट्वेल्थ में, आई टॉप द स्कूल. तो वो एक एक प्रेशर आ जाता है वहां से, सोसाइटी का भी और फैमिली में दूसरे रिलेटिव्स का, कि एग्जाम तो निकाल ही लेगी और ऐसा. तो कॉलेज, आई गॉट अ गुड कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज डीयू में मेरा एडमिशन हुआ था. सो आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम ऑनर्स यहाँ पे. सो डेफिनेटली एक ट्रांजिशन होता है, बहुत बड़ा चेंज आ जाता है कि आप एक छोटे शहर से आते हो, वहाँ के लोग थोड़े ज्यादा सीधे और ऐसे. यहाँ पे पीपल आर वेरी बोल्ड, कि एक मतलब आपको लोगों को दिखेगा, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली दिखेगा. एंड हमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होने में टाइम लगता है लोगों के साथ बात करने में. बट द पीपल ओवर हियर कि वो तुरंत एक मीटिंग में ही आपके साथ ऐसा क्लिक करके बात करने लगते हैं. तो वो राइट. सारी चीजें, जो एक कल्चरल डिफरेंस भी दिखेगा. आप छोटी फैमिली से आते हो तो वहां पे ऐसा शहर होता है कि आप कहीं घूमने चले जाओगे ना, कोई ना कोई आपको जानने वाला दिख जाएगा. बट दिल्ली जैसे शहर में, बिकॉज इट इज वेरी बिग और एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो आप कहीं घूमने जाओगे, आपको दूर दूर तक आपके जानने वाले नहीं दिखते. वो कि एक प्लस पॉइंट भी हो जाता है कहीं ना कहीं, कि ठीक है, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है थोड़ी सी यहाँ पे. सही ये बात. सारे ट्रांजिशंस थे. और फिर डेफिनेटली कॉलेज में आके, और कॉलेज ने हेल्प किया फिर पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में यहाँ पे. तो दोनों चीजों का अपना रोल है. वहां से आके आपको सहजता और एक सिंप्लिसिटी दिखती है. यहाँ पे आके आप उस सिंप्लिसिटी को अच्छे से कैसे आप यहाँ पे हैंडल कर पाते हो, दिल्ली में वो सीखने को मिलता है. Okay, so you did your graduation from with BCom honors you did, na? So till that time you were not thinking of UPSC? What was your aim during that time when you came to Delhi? So I had planned to give UPSC in my school days only. So matlab, because I got one motivation from the chief guests. Basically, in my school में the chief guest used to be the district collector or someone of that level. तो एक Right. motivation मिलता था उनको देख के कि हाँ ये करना है life में. And the second was my father. It was his dream also to see me as an IAS officer. And so both mentally तो था. But I had made up my mind कि college time तो I'll be enjoying and studying. वो वाला रहेगा. I won't be going into UPSC because I think college life you get only once. तो मेरे Right. लिए था कि यहाँ पे तो पूरा करके फिर only I'll go for UPSC preparation. So after completing my graduation in 2017, I started looking into the UPSC field, and then I gave my attempts after that. Okay, so you gave your first attempt in 2018 or 17 only? 18. So what was the journey? Did you go for it? Because I have seen some of your interviews. You have said कि coaching वगैरह तो नहीं लिया. तो मुझे ऐसे ये question मेरे later on था, but I'll start with this only कि you were fresh, मतलब fresh out of the college. You started to prepare for UPSC. फिर course भी different है ना, because you were doing BCom. और इधर मोस्टली या तो मैथमेटिक्स फॉर सीसैट अगर करना है, अदरवाइज साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, और नहीं तो जो भी ह्यूमैनिटीज के. कॉमर्स का आई डोंट नो कितना वेटेज रहता है नहीं रहता, बट स्टिल इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वर स्टडिंग इन ग्रेजुएशन डेज. तो स्टार्ट कैसे किया एंड यू डिडंट ऑप्ट फॉर कोचिंग? तो मुझे ये भी जानना है कि हाउ डिड यू, या हाउ डिड वन डिसाइड्स कि कोचिंग करनी है नहीं करनी है? मेरा थोड़ा कोचिंग से ऐसा 3 4 मेन रीजंस हो जाते हैं. मैं स्कूल टाइम तक कोचिंग नहीं ली थी, तब भी फ्रेंड्स लोग जाते थे. मैं शायद बहुत, एक दो लोग थे शायद जो नहीं लेते थे, उनमें से एक मैं थी. तो एक कॉन्फिडेंस था कि हाँ ठीक है, बिना कोचिंग अगर 12th और ऐसे कॉलेज तक निकल जाता है, मे बी यूपीएससी भी निकल जाएगा. दूसरा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बना लिया है, तो मेरे को एक वो भी भ्रम तोड़ने का था कि नहीं यार, बिना कोचिंग की भी चीजें पॉसिबल हैं. और फिर थोड़ा फाइनेंशियली भी इश्यूज आते हैं. मतलब इतना मैं वेल ऑफ फैमिली से नहीं हूँ कि 2 2.5 लाख एक बार में दे दो ऐसा. ये 3 4 रीजन थे. मेनली था कि खुद से हो सकता है, इट इज पॉसिबल.
तो जब मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक यूट्यूब उस टाइम पे थोड़ा शुरू ही हुआ था ट्रेंड में कि वीडियोस आना नई नई बहुत लिमिटेड, अब तो बहुत मिल जाती है, उस टाइम पे थोड़ा मुश्किल था। तो 17 का आई थिंक अगस्त में मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट किया था, जुलाई एंड में। फिर बुक्स लेके आई थी मैं मुखर्जी नगर से, पढ़ाई स्टार्ट की। फिर 1-2 महीना करके मैं घर चली गई थी, वहां मैं गोंडा में ही 8 महीने मैंने अपनी प्रॉपर पूरी पढ़ाई की थी, सिर्फ प्री देने आई थी मैं दिल्ली। तो ओके। उस टाइम पे तो मैंने बहुत वीडियोस देखी थी टॉपर्स की, जो स्ट्रैटेजीज होती हैं ये सारी, तो उनके बेसिस पे मैंने बना लिया कि हाँ 8-9 घंटे पढ़ना है घर से। लिटरली मैं घर से नहीं निकली थी बाहर उस 8-9 महीने में, किसी को नहीं पता था कि गोंडा में है, मेरे दोस्तों तक को नहीं पता था, सिम वगैरह बंद कर दिया था, किसी से कांटेक्ट में नहीं थी। हम्म। तो मेंटली मुझे वैसे पता था मेरा नहीं तैयार है। बट हम्म। ना वो एक, मैंने बोला कि स्कूल में टॉप किया वो सब, तो सोसाइटी का और रिलेटिव्स का स्पेशली प्रेशर आ गया था कि हाँ ठीक है हो जाता है, कोई नहीं कर, तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा वाला। तो हम्म। शायद अगर मैंने उस टाइम मुंह खोल के घर पे मम्मी पापा को, मैं वो लोग अंडरस्टैंडिंग उनको बोला होता कि अभी टाइम चाहिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगी, तो ठीक था। हम्म। बट मैंने खुद से ही, वो एक बचपना था और उसमें मैंने वो अटेम्प्ट अपना दे दिया। तो वो 2018। नहीं होना था वो पहले ही पता था, 2018 का। हम्म। फिर मैंने 2019 तो मेरा उसमें ही चला गया मेंटली, एक फेलियर लाइफ में, पता था नहीं होना है, बट फिर भी ना आप होप करते हो कोई मिरेकल हो जाए, सम मिरेकल हैपेंस एंड आप अपना नाम देख लो लिस्ट में। सो राइट। दैट डिडंट हैपन। तो फिर उसके बाद मुझे बहुत सेटल इन करने में उस फेलियर को, मेरे लिए वो बहुत ज्यादा एक सेटबैक था, तो मेरे को बहुत टाइम लगा था अपने आप को उस फेलियर से निकालने में। मे फिर बी भी मैं बिकॉज क्योंकि यू आर ऑलवेज द टॉपर और यू आर ऑलवेज डूइंग गुड, कभी फेलियर देखा नहीं। इज नहीं देखा। इट बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो? हाँ, ये दैट इज द मेन रीजन। और दूसरा कि आई थिंक ultimately eventually 1000 people are going to make to the list on an average। तो राइट। उससे पहले यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो अच्छे अच्छे को यहाँ पे फेलियर दिखाता है। उस चीज को प्रोसेस कर लेना, उस चीज को एक्सेप्ट करने में लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ऐसा होता है हमारे साथ कैसे हो गया, हम तो क्योंकि वंस द पर्सन स्टार्ट्स टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी यही होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करके दिखा देंगे। राइट। तो होता भी है, नो डाउट, अभी भी ये लोग कर रहे हैं, बट आई थिंक वो बहुत मतलब एक्सेप्शनल केसेस हैं। मोस्टली एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी 4 या 5 आते हैं, 3, 4, 5। एज भी एवरेज लबासना में बोलते हैं 27-28 हो जाती है। तो हाँ। वो चीजें आई थिंक वो गाइडेंस की जो कमी होती है ना, कि हम, क्योंकि हम आते हैं ऐसे बैकग्राउंड से, मेरे फैमिली में कोई ऐसा सिविल सर्वेंट नहीं। तो वो जो गाइडेंस की कमी भी एक फैक्टर हो जाता है, कि जो आपको, मुझे उस टाइम पे कोई एडवाइस करने वाले नहीं थे कि हाँ ठीक है अभी तुम रोक लो, ब्रेक ले लो, ये सारी चीजें जब मैंने 2-3 अटेम्प्ट दे दिए लगातार, फिर उसके बाद में लाइब्रेरी में दोस्त बने, उन्होंने फिर थोड़ा गाइड किया, उधर से हेल्प मिली कि हाँ ठीक है ऐसे करना है, ब्रेक ले लेना है, नहीं हो रहा तो। ब्रेक तो मेरे माइंड में था ही नहीं, ऐसा होता था करना है करना है करना है। तो लगातार, वो राइट। सारी चीजें, हाँ। वो भी I'll come to that also because after fourth attempt you decided to take a break. I think it will be a big, I don't know, maybe शायद उसमें to and fro रहेगा कि should I take a break या फिर अभी moment, मतलब है चीजें momentum में है चीजें तो should I give another attempt. तो you gave 3 attempts, no prelims. In fourth attempt you got mains. Usually the mindset will be कि maybe next time I'll get into the interview or maybe get my name in the list. So how did you decide after mains ki no, I'll take the break? So what happened was कि after giving my fourth attempt, एक वो हो गया था कि नाउ बिकॉज आई हैड ओनली 2 attempts लेफ्ट। तो मेरे लिए ऐसा था कि अब फिफ्थ अटेम्प्ट विल बी माई डू और डाई वाला अटेम्प्ट, बिकॉज सिक्स्थ में यू नेवर नो, मेरा केस ऐसा था। Mm-hmm. तो फिफ्थ अटेम्प्ट में मैंने कहा था कि अभी है जो टाइम है, यही अटेम्प्ट, थोड़ा सा जब सीरियस होना है, रिस्क लेना है सब कुछ। तो वंस मैं मतलब मार्कशीट केम ऑफ मेंस, तो मेरे को पता, मैं आई गेव माई ऑप्शनल एट दैट टाइम वाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो आई Okay. डिडंट गेट गुड मार्क्स इन दैट। तो Mm-hmm. मेरे लिए था कि अब या तो इसको ही पढूं अच्छे से, या तो फिर एक अब रिस्क ले लूं, कुछ नया स्टार्ट करूं। तो मेरा, बिकॉज आई हैड रीच्ड माय सैचुरेशन लेवल विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल, एंड आई वांटेड टू स्टार्ट अफ्रेश, दिस अटेम्प्ट आई वांटेड टू स्टार्ट अफ्रेश। सो आई चेंज माई ऑप्शनल, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एंथ्रोपोलॉजी लिया। तो वन मेन रीजन टू गिव अ ब्रेक ऑल्सो वॉज कि मेरे को 1 साल चाहिए था इस ऑप्शनल को अच्छे से करने के लिए, बाकी सारी चीजों को। बिकॉज आफ्टर क्वालिफाइंग प्री थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था, कि अच्छा समझ में आया कि हाँ इट इज अचीवेबल, दिस गोल इज अचीवेबल। तो मैंने प्री का स्ट्रैटेजी जो 2021 में रखा था, उसी स्ट्रैटेजी में सोचा था कि प्री इधर भी दूंगी। बस मेंस और वो बाकी की चीजें मुझे था कि पहले से रेडी होनी चाहिए। बिकॉज वंस आई क्वालिफाइड द प्री इन 2021, 3 साल से प्री नहीं हुआ था 3 अटेम्प्ट में। Mm-hmm. तो मेरा सारा फोकस ही प्री पे था फोर्थ अटेम्प्ट में, कि प्री तो एटलीस्ट निकले। तो Mm-hmm. जब प्री निकाल के देखा तो हुआ कि हाँ अब अटेम्प्ट चाहिए, कि तुम्हारा मेंस रेडी होना चाहिए, फिर मैं प्री और बाकी के वो दूंगी। तो इसलिए वो पूरा ब्रेक लिया था, और डेफिनेटली बहुत
बड़ा वो था, एक रिस्क भी था, और सबको समझाना कि हाँ अब ब्रेक ले रही हूँ। बिकॉज एक साल और 4 साल ऐसे ही हो गए, और फिर एक साल और ब्रेक लेके एग्जाम देना मतलब कि आपको 2 साल एक्स्ट्रा, 3 साल चाहिए। तो नाउ आई वांट टू आस्क यू कि 3 बार प्री नहीं हुआ, फिर फोर्थ में मेंस नहीं हुआ डेफिनेटली, और आपने बार बार बोला है दैट ऑब्वियसली इट अफेक्टेड यू, बट फिर भी वो मोटिवेशन कि अभी देना ही है एक अटेम्प्ट, वो कैसे, या मतलब देना है एक अटेम्प्ट या क्लियर करना है एग्जाम, वो मोटिवेशन कैसे मेंटेन रहा? मोटिवेशन मेंटेन रहा बिकॉज मेरे पास मतलब खोने को तो कुछ बचा ही नहीं था, सब पाने पाने के लिए ही था। आई हैड नो प्लान बी ऑल्सो, मैंने तो बनाया ही नहीं था कुछ। और हम्म। सिंस आई जम्प्ड इनटू यूपीएससी स्ट्रेट फ्रॉम बीइंग अ ग्रेजुएट, तो मेरे लिए था कि अब ये नहीं हुआ तो क्या। आई गेव मल्टीपल, मतलब मल्टीपल नॉट, बट 2 CDS अटेम्प्ट मैंने दिए थे, और हम्म। सीएपीएफ के 2 एग्जाम्स दिए थे। सो सीडीएस आई क्वालिफाइड बोथ, हम्म। लेकिन मेरा एक एसएसबी मैंने दिया नहीं, दूसरे में मेरा 5 दिन के बाद वो कॉन्फ्रेंस आउट हुई थी। हम्म। तो फिर एक सीएपीएफ पहला वाला मेरा नहीं क्वालिफाई हुआ था, बट सीएपीएफ का सेकंड मैंने पढ़ा, तो मुझे सिलेबस वही यूपीएससी के पीपीवाईक्यूज देख के मैंने समझ गई कि हाँ इसमें थोड़ा सा एनसीईआरटीज पे और फोकस करो तो यू कैन गेट थ्रू सीएपीएफ। तो हम्म। वो सारी चीजें दी, फिर उसमें थोड़ा मतलब बहुत ब्लंडर हो गए थे उस एग्जाम में, मेरे पास उसका वो कॉल लेटर नहीं आया था, वो सारी चीजें हुई थी उसमें कि आई हम्म। डेंट गेट द कॉल लेटर ऑफ द फिजिकल। तो मेरे लिए जो प्लान बी भी हुआ तो वो यही होता है बेसिकली कि अगर आप यूपीएससी करते हो या तो आप गवर्नमेंट जॉब्स ही देखते हो, सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, ये स्टेट पीसीएस दे रहे होते हो। हम्म। तो ये सारी चीजें भी एक मोटिवेशन ये होता था कि यार सब जगह दिमाग नहीं भटकाना है, क्या पता है एक अटेम्प्ट और देते हैं, इसको निकालते हैं। थोड़ा सा पॉजिटिविटी मेरे को दोस्तों से मिली, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, एक दो लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त मिल गए, तो हम्म। जिन्होंने बहुत ज्यादा पुश किया कि हाँ एग्जाम निकल सकता है, क्लियर हो सकता है। और हम्म। डेफिनेटली दूसरों की स्टोरीज भी सुन के लगता है कि हाँ ठीक है, लोगों का हुआ है। तो हम्म। वो सारी चीजें खुद को मोटिवेट करती थी, क्योंकि वही था, पाने के लिए सब कुछ था, खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। तो था हम्म। कि अब रिस्क ले ही लिया, बिकॉज आप यूपीएससी में अगर आ जाते हो तो वही हम्म। सबसे बड़ा रिस्क है। हम्म। तो उसके बाद तो रिस्क लेना तो फिर एक आदत भी बन जाती है, तो ऐसे करके मोटिवेशन मिलता था। और डेफिनेटली लास्ट में बोलूंगी कि भगवान में विश्वास बहुत जरूरी है। 2-3 अटेम्प्ट जब नहीं होते ना, इंसान सोचता है कि भगवान कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो हम्म। फोर्थ अटेम्प्ट से ही मेरा थोड़ा हो गया था कि हाँ भगवान में विश्वास रखना, मंदिर जाना, जैसे चीजें अच्छी लगती हो ना, वो पीस वहां से मिलता है, वहां से आती है मोटिवेशन थोड़ी सी। हाँ, तो मेडिटेशन वगैरह भी यू स्टार्टेड और ओनली सिर्फ भगवान जी के पास या? मेडिटेशन मेरे अंदर नहीं है वो कंसंट्रेशन, आई थिंक अभी मेरा 10 जगह माइंड दौड़ रहा होता है। अबाउट आई गेस फेथ ना, इफ यू हैव फेथ तो हाँ, फेथ फेथ। या हो जाती है। So plan B, you didn't have a plan B. What do you think if any aspirant is, looking forward? आपका हो गया luckily, but there are many जो similar मेहनत करते हैं. Sometimes they get to interview round, वहां नहीं आता, कई बार रिजर्व लिस्ट में आके भी they don't get the posting, और अगली बार फिर से सेम वो साइकिल में अटक जाते हैं। तो what would you say to them कि प्लान बी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या? प्लान भी आई थिंक होना चाहिए। अगर मुझे कोई उस टाइम पे गाइड करता ना, तो 2 अटेम्प्ट्स तक अगर आप दे रहे हो, तो हम्म। आप 2 अटेम्प्ट्स में नहीं हो रहा तो कुछ एक प्लान बी साइड सोर्स में होना चाहिए, बिकॉज 2 अटेम्प्ट्स में आपको एग्जाम का नॉलेज हो जाएगा। हम्म। फिर उसके बाद डेफिनेटली एक प्लान भी होना चाहिए। तो पता है क्या, मुझे लगता है कि इस एग्जाम में बहुत सारे, अब मैंने लोगों को देखा है जो सर्विसेज में है फिर इस एग्जाम में आए हैं, उनके राइट। अंदर से एक जो सबसे बड़ा प्रेशर हमारा होता है कि नहीं हुआ तो क्या, उनके अंदर वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ हाथ में है और हम्म। हमारे पास कुछ नहीं होता हाथ में। और हम्म। हम जैसे लोगों को देख के लोग होता है कि नहीं इन्होंने दिया है बिना प्लान बी के, हम भी दे दें। तो हम्म। हमें वो रियलाइज करना चाहिए कि वो रेशियो बहुत कम है। वो हम्म। लाख में से आके कुछ हजार हैं, उसमें से कुछ 100 लोग हैं जो ऐसे होंगे जिन्होंने प्लान भी शायद नहीं बनाया, हजारों, बस 1000 मान लो अगर मैक्स टू मैक्स। तो हम्म। ये चीज ध्यान में हमेशा रखनी है कि वो बहुत लिमिटेड लोग हैं। तो हम्म। इसको प्लान भी डेफिनेटली होना चाहिए। अगर मेरे को कोई गाइड कर रहा होता तो शायद मैं एक जॉब के साथ या किसी चीज के साथ इस चीज को कर रही होती। राइट। हाँ, प्लान बी का तो आई गेस वो जो एस्पिरेंट्स में संदीप भैया ने बोला ना, प्लान बी नहीं होना चाहिए, उसके बाद सब हाँ लोग हाँ हाँ, जोश सब में लोग भाई वो एग्जैक्टली। नहीं होना चाहिए। बट हाँ, सेकेंड थिंग, सिंस आई एम ऑल्सो गर्ल नाउ, आई एम मैरिड ऑब्वियसली, बट आप चार कॉलेज खत्म किया, यू जम्प्ड इनटू प्रिपरेशन, 3-4 बार नहीं हुआ। सोसाइटल प्रेशर, अगर आपकी फैमिली, इफ योर फैमिली इज सपोर्टिंग स्टिल, क्या होता है उनको भी सोसाइटल प्रेशर होता है, और वो फिर ट्रांसफॉर्म्स, वो आप तक पहुंचता है। वो मतलब हैज इट एवर हैपेंड दैट योर मॉम एंड डैड वर पुशिंग कि नहीं हो रहा है, तो समथिंग समथिंग जो भी, वो मतलब कैसे उन्होंने डील किया विद योर फेलियर्स, वो जानना है मुझे एक्चुअली। आई थिंक वंस द थर्ड अटेम्प्ट में जब हुआ था कि वंस आई डिडंट मेक थ्रू द थर्ड अटेम्प्ट, माय मदर वाज लाइक कि नहीं हो रहा तो कुछ और भी देख लो।
हम्म तो मेरे लिए वो एक आई थिंक सेकंड में हुआ था, शायद सेकंड या थर्ड के बीच में, कहीं थर्ड के रिजल्ट आने वाले थे आई थिंक। तो मम्मी ने बोला था नहीं हो रहा तो कुछ और देख लो, अगर नहीं हो रहा तो हम्म मेरे लिए हो गया था नहीं, ये तो मतलब सोचा हुआ है, ये कैसे छोड़ दूं। हम्म बिकॉज यूपीएससी एक दलदल है कि आप जब छोड़ने का सोचोगे ना तो आपको याद आएगा आपने इतनी मेहनत कर रखी है, तो उसको वेस्ट कैसे जाने दोगे। तो राइट। वो मम्मी की तरफ से एक बार आया था, उनका भी बाद में मेंटली उनका हो गया कि हाँ ठीक है उसको देने दो। माय फादर नेवर सेड एनीथिंग टू मी, उनका हमेशा यही रहता था कि ठीक है तो एक कान से सुनो, अगर कोई कुछ बोल रहा है दूसरे कान से निकाल दो। ओके। ही सपोर्टेड मी टिल द एंड कि देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तो हम्म वो वहां से तो टचवुड मेरे लिए बहुत इजी हो गया था कि फैमिली का प्रेशर नहीं था, रिलेटिव से बहुत प्रेशर था सब जगह से कि नहीं हो रहा, बड़े फालतू के टॉपर्स बनते थे, ये है वो है, उनके ताने बहुत सुनने को मिले हैं। तो वो चीजें थी, लेकिन वही पापा का एट द एंड पापा ही हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और फाइनेंशियली क्योंकि मैं बड़ी थी तो पापा का ही सारा, उनको ही देखना था सब कुछ। तो हम्म उनकी तरफ से था कि जितना मैं अभी तक जब तक होगा तब तक करूंगा, तो देख लो, जब मतलब उन्होंने मेरे ऊपर छोड़ रखा था एक्चुअली। अब हम्म वो मेरे अंदर सेल्फ इनग्रेन कोई प्रेशर आ गया था कि हाँ, खुद को भी लगता है ना कि अब इतनी एज हो रही है, आप बड़े हो रहे हो, आपको घर को भी देखना है, भाई है छोटा उसको भी बाद में पढ़ाना है। तो हम्म वो सारी चीजें थी, और सोसाइटी का तो डेफिनेटली रहता है। अब कहीं हो क्या गया था, पेरेंट्स ने जाना बाहर कम कर दिया था, फंक्शंस में बहुत लिमिटेड जाते थे, क्योंकि हम्म बाहर जाते ही पूछते हैं कि बच्चा बच्ची क्या कर रही है, क्या कर रही है अभी क्या। तो मैंने पापा को एक मैंने कहा पापा बोल दिया करो जॉब कर रही है, कुछ कर रही है, कौन चेक करने आ रहा है कि क्या कर रही है। तो राइट। उनको तो ऐसे कर करके उस चीज से निकले थे फिर। ओके। और ये एक मिनट, हाँ, किसी इंटरव्यू में यू वर सेइंग कि यू वर, आई गेस यू प्लेड बास्केटबॉल और समथिंग ड्यूरिंग योर स्कूल डेज, या बास्केटबॉल बॉल ओनली, हाँ, तो टिल व्हाट स्टेज यू प्लेड? आई प्लेड बास्केटबॉल इन स्कूल। वहां पे तो मेरा, मैं कह रही हूँ जैसे छोटा शहर है, स्कूल अच्छा था बट बहुत कम लोग खेलते थे, तो हम्म वो शूटिंग की आदत वहां से लग गई थी, उसकी प्रैक्टिस थी। तो आई प्लेड इन कॉलेज, तो कॉलेज लेवल तक खेला था बस, कॉलेज में थोड़े इंटर कॉलेज मैचेस यही सब किए थे फिर। ओके, तो ये स्पोर्ट्स से तो यू लर्न अ लॉट, ठीक है। तो डिड इट हेल्प इन यू इन योर प्रिपरेशन डेज फर्स्ट, और दूसरा कि प्रिपरेशन करते करते यू डिड यू टेक आउट टाइम फॉर प्लेइंग एंड ऑल, या वो बिल्कुल साइड में, जैसे सारा कनेक्शन हम्म, साइड में हाँ, वैसे ही ये भी, या नहीं कंटिन्यू किया था? आई ट्राई टू कंटिन्यू बट हो नहीं पाता, बिकॉज एक तो लगता है प्रिपरेशन की साइकिल में आपको ये लगने लगता है कि यार यहाँ टाइम देने से अच्छा इतना और पढ़ लूं। ओके। दूसरा, बास्केटबॉल ऐसा गेम है कि आपको इजीली कोर्ट्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे, मतलब हम्म बैडमिंटन फिर भी आप खेल लेते हो गली में निकल के, बास्केटबॉल के लिए प्रॉपर कोर्ट वगैरह सेटअप चाहिए, वो हम्म नहीं था घर के आसपास। तो ये दो तीन रीजंस हो गए थे जिसके कारण कंटिन्यू किया नहीं किया। और डेफिनेटली इसने हेल्प किया किया था प्रिपरेशन में, जब जैसे होता था कि यार उस टाइम पे भी वही याद आता था कि बहुत बार मैचेस हारे हैं, तो क्या कैसे अपने आप को संभालते थे, टीम कैसे होता था, तो ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा हेल्प करता है। डोंट आई वोंट से कि बहुत ज्यादा, बट टू हम्म एन एक्सटेंट हाँ हेल्प तो मिलता है कि आपने कुछ कर रखा हो लाइफ में। Okay, and lastly, you have got AIR 199. You still have one attempt left. इतना आपकी बातों से समझ आया कि right now तो you are focusing on foundation course. But do you plan to give another attempt? Because अभी conversation में ही you said कि सपना तो IAS बनने का था. अभी मिला क्या है आपको? Uh, अभी वही वेट हो रहा है, सर्विस एलोकेशन आई थिंक इस वीक में आएगा। सो what are you लेट्स सी, saying? आईएएस भी हो सकता है, सो लेट्स सी। मैं इसके ही वेट कर रही हूँ, इसी सर्विस एलोकेशन का। जहां तक है आई वोंट बी गिविंग द अटेम्प्ट्स बिकॉज मेरा तो सैचुरेशन हो गया है, Okay. और अगर जो भी जॉब है उसके साथ खुश हूँ मैं। IAS नहीं मिलता है, कुछ और मिलता है, still कुछ मतलब, हाँ, I think, हाँ हाँ, फिर I भी आई एम डन कि ठीक है, और लोगों को चांसेस मिल जाने चाहिए। वाई वेस्ट अ सीट, वाई वेस्ट एन अटेम्प्ट अब दूसरों पे। okay, okay. So अगर IAS नहीं मिलता तो what is your आई थिंक second? पीएस होगा, पुलिस। अच्छा, IPS, तो you are a sports person, I guess, तो policing is also good, I guess. हाँ हाँ It will be a good. So anyways, so thank you so much for your time. It was really nice हाँ, talking to you. और स्टार्टिंग में आपने एक बात बोली थी कि बहुत लोगों को लगता है गोंडा के लोग अच्छे नहीं होते, बट आई कैन अश्योर यू आफ्टर आप मुझे आधे घंटे से हम बात कर रहे हैं, हाँ, हाँ, हाँ। एवरी टाइम यू आर स्माइलिंग, तो ये तो कंफर्म है गोंडा के लोग अच्छे भी होते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो इट इज आई विल गुड। टेल यू इसकी एक छोटी सी स्टोरी है बस, सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, कि आई या स्माइल अ लॉट। मैं राइट। बहुत स्माइल करती हूँ। मैं बास्केटबॉल कॉलेज में मेरा नाम स्माइली था, मेरी जर्सी के पीछे मेरा नाम स्माइली लिखा हुआ है अभी भी। ओके। या तो बट इट्स गुड ना, तो पॉजिटिविटी के लिए कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, सो यू आर हाँ। इनफ फॉर योरसेल्फ। तो
That was really great having, conversation with you. Thank you so much for your time. Just enjoy your Thank you. days and all Thank the best you. for your time in Labasna. And then अगर IPS मिलता है तो NPA, and और अगर IAS ही मिल जाता है तो फिर you will continue in Labasna. So all the best for that. Thank you so much for Thank your. you. Thank you. So, this was Ms. Tripti Kalhans. I hope you enjoyed our conversation. If you want us to bring to you more such insightful conversation, then please do not hesitate and please subscribe and like our channel and press the bell icon for constant update. Till then, this is Pallavi signing off. Stay curious and stay informed. Thank you for watching.